नमस्कार, वेलकम टू होप एंड हील द कैंसर केयर पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ तनुश्री। मई महीना ब्लैडर कैंसर के अवेयरनेस मंथ है। इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे ब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स, कॉजेस और ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में डायरेक्टली फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स। डॉक्टर अन्ना, पहला सवाल आपसे, व्हाट इज ब्लैडर कैंसर? Bladder cancer is one of the rare disease in India. It can occur in any age group, but more commonly in older age group like 60, 50s in their age. But it can also occur in 40, 50s of age. And come to males and females ratio, it can occur in both sex, but more commonly in men, like in the ratio 4:1. And coming to statistics, the incidence of bladder cancer in India is on the 17th position, but the mortality comes to 19th position. And when we compare to world, it comes in the 10th position. So it is a rare disease in India, but there are geographical variations. Still, it is a rare disease in India. अब हम बात करेंगे ब्लैडर कैंसर के रिस्क फैक्टर के बारे में। डॉक्टर श्रेया, क्या आप हमें बता सकते हैं ब्लैडर कैंसर के मेजर रिस्क फैक्टर क्या है? The median age, first I want to introduce with that. The median age which comes, the bladder cancer is seen is in the age of 70s, and it's mainly seen in the males, more common than the females. So the risk factors includes smoking. Smoking, if a person smoker and non-smoker is compared, 2 to 3 folds higher risk is there in the smokers as compared to non-smokers, and almost 50% of the cases who are smokers end up with bladder cancer. So the next risk factor is the chemical exposure. Where a person who is working in the chemical industries like in dye industry, hair dye industry or any other chemical is at a higher risk of developing bladder cancer. Next comes the drugs, mainly cyclophosphamide. If it is used, the main side effect is the hemorrhagic cystitis. So that also which leads to chronic inflammation and which also is a risk factor for bladder cancer. Next comes the parasite infection. If any person goes for a swimming without any proper protection and then in the chlorinated water and which may be infested with a parasite infection like schistosomiasis, so that can also lead to bladder cancer. The risk factors are, it is not heritable disease. Any person in the family has, doesn't mean that you will inherit it, but if there are any chromosomal abnormalities in the family which runs, may be a risk factor for bladder cancer. So few of the chromosomal abnormalities are retinoblastoma, osteosarcoma. If any person in the family has this, then you are at the risk of developing bladder cancer. So these are the major risk factors. Any other risk factors can be if chronic inflammation is there or if recurrent infections of the urinary tract are happening, then it is at the higher risk of developing bladder cancer. So these are the major, and if it can be prevented by maintaining a proper hygiene and taking care during any water facilities is being used for swimming purpose, so that can be avoided, which can decrease risk significantly. Also, the major risk is smoking. So if smoking is reduced, the risk is definitely reduced. अगले सवाल के लिए चलते हैं डॉक्टर शर्मिष्ठा के पास। मैम, ब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं जिन पे लोगों को ध्यान देना चाहिए? The most common signs and symptoms of bladder cancer are the blood mixed in urine. There will be a compulsion to urinate, but the patient is unable to do so. There might be frequent urinary tract infection, and patient will be having burning, micturition, and pain while passing urine, and there can be lower back pain also. अब एक बहुत ही कॉमनली पूछा गया सवाल, सर क्या ये आप बता सकते हैं कैसे पता चले कैंसर ब्लैडर के बियॉन्ड स्प्रेड हुआ है या नहीं? Bladder cancer can go beyond the bladder. It can be locally advanced or it can be distant spread. A locally advanced means bladder cancer can spread to nearby organs like prostate and seminal vesicles in male, and in female it can go up to vagina or uterus in female. You can tell by the symptoms, like if the bladder cancer is obstructing locally or it is going beyond the bladder. And distant when you can tell the symptoms of distant metastasis of the bladder by symptoms of the patient. If it is spread to bones, patient can present with bone pain or tenderness in the bone or with limping and all. If the bladder cancer spread to lungs, patient can develop a cough and patient can present with breathing difficulty. And bladder cancer can also spread to brain also. So those patients will present with headache, seizures, and the bladder cancer spread to liver, and it can spread to multiple organs like omentum and peritoneum. Those omentum and peritoneal patients will present with ascites.
ascites, which is there is fluid filled cavity inside the abdomen. Patient will come with distended abdomen and all, and the cancer spreads to liver. Patient can present with pain abdomen and jaundice can be there. चलिए अब समझते हैं ब्लडर कैंसर के टाइप। मैम, मसल इन्वेसिव और नॉन मसल इन्वेसिव ब्लडर कैंसर में क्या डिफरेंस होता है? यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, उसका जो अंदरूनी परत होता है उसे हम यूरोथीलियम लाइनिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक लाइमिना प्रोप्रिया होता है और उसके बाद एक डीप मसल का लेयर रहता है हमारे ब्लैडर में, जो कि यूरिनेशन में मदद करता है। ब्लैडर कैंसर के बारे में जानने के पहले ये लेयर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अंदरूनी परत होती है यूरोथीलियम की, उसमें सबसे कॉमनली जो ट्यूमर डेवलप करता है वो है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा या फिर यूरोथीलियल कार्सिनोमा, जो कि 90% केसेस में यही ट्यूमर देखा जाता है। इसमें एक होता है जो कि नॉन इन्वेजिव पैपिलरी टाइप है, जो कि फूल जैसा दिखता है, और एक इन्वेजिव ब्लैडर के ट्यूमर रहते हैं। जो नॉन इन्वेजिव पैपिलरी ट्यूमर होता है उसके भी अब हम लोग ग्रेड करते हैं, एक होता है लो ग्रेड और एक होता है हाई ग्रेड। अब हमें ये देखना रहता है कि ये जो नॉन इन्वेजिव ट्यूमर है ये किसी भी तरह से इन्वेड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उससे ट्रीटमेंट बदल जाता है। नेक्स्ट होता है इन्वेजिव ब्लैडर ट्यूमर। जो इन्वेजिव ब्लैडर ट्यूमर्स होते हैं उसमें भी हमारे पास बहुत तरह के ट्यूमर है, जैसे कि माइक्रोसिस्टिक टाइप, प्लाज्मासाइटोइड टाइप, सार्कोमेटॉइड टाइप, ट्यूबुलर एंड माइक्रोसिस्टिक टाइप। उसके साथ ही हमारे पास एक है जो कि है पोरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर। अब ये सारे जो ट्यूमर रहते हैं इसे हमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के द्वारा सब क्लासिफाई करना रहता है, क्योंकि इससे हम प्रोग्नोसिस बता सकते हैं पेशेंट को। ये सबसे कॉमन वाला टाइप मैंने बताया। उसके बाद हमारे पास है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ये उन पेशेंट्स में देखा जाता है जिनके पास एक स्टोन रहता है और ये जो अंदरूनी परत यूरोथीलियम की उस स्टोन के कारण बदल जाती है, स्क्वामस की लाइनिंग बन जाती है और उस क्षेत्र में ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा वहां डेवलप करता है। उसके बाद हमारे पास है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर ग्रुप, जो कि बहुत अग्रेसिव ग्रुप है और उसमें हमारा एक है स्मॉल सेल कार्सिनोमा और एक है लार्ज सेल कार्सिनोमा। इसे हमें माइक्रोस्कोपिकली देख के समझ के बोलना पड़ता है और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की मदद से हम इसे सब क्लासिफाई कर पाते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये बहुत ही अग्रेसिव रहता है, इसमें पेशेंट को बहुत जल्दी ट्रीटमेंट की आवश्यकता रहती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है सार्कोमा ग्रुप। ब्लैडर में जो मसल का लेयर मैंने आप लोगों को बताया था, उस लेयर में हमारा जो डेवलप करता है ये बच्चों में दिखता है, एक रैप्डोमायोसार्कोमा बोला जाता है। ये बच्चों में ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। वैसे तो ये सारे ट्यूमर्स बहुत रेयर हैं। सबसे कॉमन यूरोथीलियल कार्सिनोमा ही जो है जो ब्लैडर में पाया जाता है। डायग्नोसिस के कॉन्टेस्ट में एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, वो IHC। मैम, कैन यू एक्सप्लेन हाउ इम्पोर्टेंट इज IHC टेस्ट इन ब्लडर कैंसर? Immunohistochemistry also plays a very important role in case of bladder cancer. In Hope and Heal Cancer Hospital, हम लोग यहाँ पे जो type of bladder tumor हम लोग को मिलता है उसमें से हम लोग ने देखा है ज़्यादातर केसेस में कुछ मार्कर्स अगर पॉजिटिव आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि bladder tumor is positive. ट्यूमर्स प्रेजेंट है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट होता है, एंड वो मसल लेयर को इन्वेड किया कि नहीं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली, इन केस ऑफ एनी मेटास्टैटिक कैंसर, अगर कैंसर कहीं और जगह से है और वो ब्लैडर में आके फैल गया है, तो हम लोग कैसे ये समझेंगे कि वो ब्लैडर का ही ट्यूमर है, नहीं कि और से वो ट्यूमर आया है। तो जैसे ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, लोब्यूलर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट बोल की भी एक टाइप ऑफ ट्यूमर है जिसमें भी हो सकता है। तो हम लोग कुछ मार्कर्स है, विद द हेल्प ऑफ दोज मार्कर्स वी कैन टेल दैट इट इज अ ब्लैडर प्राइमरी और इट इज अ प्राइमरी ओरिजिन ऑफ विच ऑर्गन। बेसिकली इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में हम लोग को देखना पड़ता है कि वो कौन सा टाइप का मार्कर्स पॉजिटिव ले रहे हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लैडर कैंसर्स डिवाइडेड इनटू बेसल टाइप एंड द लुमिनल टाइप। तो लुमिनल ब्लैडर कैंसर्स में हम लोग ने देखा है कि CK20, फिर यूरोप्लेकिन 2 एंड GATA3, ये सब बहुत इन साइटोकेराटिन बोल के कुछ मार्कर होता है जो इसमें ज्यादा पॉजिटिव आता है, एंड कंपेयर टू द बेसल मार्कर जिसमें हम लोग देखते हैं CK5/6 बहुत पॉजिटिव आता है। सब डिफरेंशिएट कर देता है कि क्या टाइप ऑफ ब्लैडर कैंसर है। सो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बोथ luminal and basal type of bladder cancers and also in differentiating what is the primary origin। और कुछ न्यू बायोमार्कर्स भी आए हैं मार्केट में, जैसे हम लोग बोल सकते हैं HER2 रिसेप्टर भी अभी हम लोग देख रहे हैं
कि इट इज़ इन द स्टिल इन द स्टडिंग प्रोसेस. एंड देन प्रोग्राम सेल डेथ लाइगेंड 1 रिसेप्टर बोल के भी एक है. देन हम लोग P53 भी देखते हैं विच इज़ ट्यूमर सप्रेसर जीन. एंड Ki-67 भी हम लोग को हेल्प करता है बोलने के लिए कि ट्यूमर कितना तेजी से ट्यूमर प्रोलिफरेट कर रहा है. एंड ऑल्सो SOX2 बोल के एक मार्कर आता है जो बेसिकली कैंसर स्टेम सेल मार्कर है. सो एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द न्यूरोएंडोक्राइन डिफरेंशिएशन. एंड लास्टली वाइमेंटिन विच इज अ मेसेंकाइमल मार्कर. तो कोई अगर सार्कोमा कुछ होता है तो उसमें वाइमेंटिन पॉजिटिव आ जाता है. तो ये सब मार्कर्स डेफिनेटली मैं बोलूंगी इन केस ऑफ ब्लैडर कैंसर्स हम लोग को डे टू डे बेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. एंड कोई भी कैंसर हॉस्पिटल में ये सब मार्कर्स होना चाहिए. वी हैव ऑल दिस मार्कर्स इन आवर होप एंड हिल कैंसर हॉस्पिटल. सो आई विल डेफिनेटली recommend people to have a thorough test जिसमें patient can have an overview of what is the patient having. अब बात करते हैं ट्रीटमेंट अप्रोचेस की. सर, नॉन मसल इन्वेसिव ब्लडर कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? तो आज हम बात करेंगे पेशाब की थैली की कैंसर जो मसल इन्वॉल्व नहीं है. तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? आमतौर पर यहाँ नॉर्मली हम पेशेंट को बुलाते हैं, हर एक हफ्ते में बुलाते हैं. एंड हम पेशेंट को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, या लो रिस्क में है, या इंटरमीडिएट रिस्क में है, या बहुत हाई रिस्क में पेशेंट है. जो लो रिस्क में पेशेंट आते हैं एंड नॉन मसल इन्वेजिव रहता है, जो पेशाब की थैली की मांस में कैंसर पहुंचा नहीं है, उन पेशेंट में हम सिर्फ एंड सिर्फ सर्वेलेंस रखते हैं. हम हर 3-3 महीने पे आपको बुलाएंगे और दूरबीन की जांच करेंगे. हर दूरबीन की जांच करेंगे और पेशाब की टेस्ट करेंगे. सिर्फ ये 2 चीज़ें से हमें पता लगेगा कि बीमारी बढ़ रही है या कंट्रोल में है. ये होता है लो रिस्क पेशेंट में. अब आते हैं हम इंटरमीडिएट रिस्क एंड हाई रिस्क ग्रुप में. इन दोनों में हम क्या करते हैं? आपको सिर्फ आना है, 1 घंटे की प्रोसीजर है. एंड यहाँ कुछ भी आपको कीमो नहीं लगेगा. बस जो बचपन में आप टीका लगाते थे BCG वैक्सीन यहाँ देने की जगह हम पेशाब की थैली में डालते हैं. पेशाब के रास्ते से हम एक नलकी डालेंगे आपको, पेशाब की रास्ते से वो BCG वैक्सीन डालेगा. 1 घंटे तक वो आपको रोक के रखना पड़ेगा और 1 घंटे के बाद आपको उसको पेशाब की तरह पास करना है. ऐसे आपको हर हफ्ते आना है 6 बार. उसके बाद हम और एक बार असेसमेंट करेंगे आपकी, क्या आपकी बीमारी कंट्रोल में है या नहीं है. फिर अगर कंट्रोल में है तो हम आपको सर्वेलेंस में डालेंगे. कभी फ्यूचर में ये रिस्क ना बदले या ट्यूमर में ना बदले. अगर ये फ्यूचर में आपको जब दूरबीन की जांच करेंगे ट्यूमर पकड़ में आता है, तब जाके पेशाब की थैली की ऑपरेशन करना पड़ता है. इसका इलाज बस इतना ही है. ब्लडर कैंसर मसल इन्वेसिव हो गया तो क्या ऑप्शन होता है? सर, मसल इन्वेसिव ब्लडर कैंसर का ट्रीटमेंट अप्रोच क्या होता है? हाँ, तो ये मसल इन्वेसिव में क्या होता है, जब हमारी जो ब्लैडर है उसमें जब हम लोग TURBT करते हैं या फिर बायोप्सी जिसको TURBT कहते हैं, उसमें जब मसल इन्वेसिव निकलता है, अर्थात जो ट्यूमर होता है वो जब मसल तक फैल गया रहता है, तब ये बीमारी थोड़ा आगे बढ़ा हुआ रहता है. इसमें नॉर्मली हम लोग का जो ट्रीटमेंट है वो है आपका, पहले तो हमको स्टेजिंग के लिए एक CT स्कैन करवाना पड़ेगा, एक छाती का CT स्कैन, एक पेट का CT स्कैन, पेल्विस का एक MRI, ये देखने के लिए जो ट्यूमर और कहीं पर फैला है क्या. अगर ऐसा पता चलता है जो ट्यूमर ब्लैडर के अंदर ही सिर्फ मसल तक फैला हुआ है या आसपास के जो ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम पेल्विक लिम्फ नोड्स कहते हैं, अगर वहीं तक फैला हुआ होता है, तब लेकिन मेन ट्रीटमेंट इसका लेकिन सर्जरी है. क्या सर्जरी है? इसको सर्जरी को जो कहा जाता है उसको रेडिकल सिस्टेक्टोमी करते हैं, अर्थात जिसमें पूरी ब्लैडर की थैली को हम निकाल देते हैं. और इस ब्लैडर की थैली को निकालने के बाद फिर ब्लैडर की थैली को हम किस तरह तैयार कर सकते हैं, इसके कई तरह के उपाय हैं. एक होता है जो हम इसको कॉन्टिनेंट और इनकॉन्टिनेंट कहते हैं, अर्थात जो पेशाब का रास्ता होता है उसको हम पेट में हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू में एक रास्ता बनाते हैं जिसे हम आइलियल कॉन्ड्यूट कहते हैं. और एक तरीका होता है कॉन्टिनेंट का. कॉन्टिनेंट में भी 2 तरीके से हो सकते हैं. एक होता है जब हम आइलियम के थ्रू ऐसा करते हैं जो यूरिन आके वहाँ पे कलेक्शन होता है, फिर पेशेंट खुद एक कैथेटर के माध्यम से उस यूरिन को अपने समय के हिसाब से उसको खाली कर पाता है.
और एक तीसरा जो होता है उसे हम न्यू ब्लडर कहते हैं, अर्थात एक नई तरह का ब्लडर बनाया जाता है जो पिछले ब्लडर के जगह पर अभी वो ब्लडर के हिसाब से काम करता है। लेकिन मेन ट्रीटमेंट जो होता है वो है रेडिकल सिस्टेक्टोमी, अर्थात पूरे पेशाब के थैली को ही हमें निकाल देना पड़ता है और इसके साथ हमें जो ग्लैंड्स होते हैं पेल्विक लिम्फ नोड्स वाले ग्लैंड, उन्हें भी हमें पूरी तरह राइट और लेफ्ट दोनों तरफ के ग्लैंड्स को हमें साफ करना पड़ता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। हमारे बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो जब ब्लडर पूरे निकाल देने वाला सवाल आता है तब वो बोलते हैं नहीं सर ब्लडर पूरी तरह नहीं निकालेंगे, पर एक्चुअली दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर मसल इन्वेसिव ब्लडर कैंसर। और एक तरीका होता है जब कभी ये ट्यूमर थोड़ा और आगे बढ़ा हुआ रहता है या ग्लैंड में फैला रहता है, कभी कभी हम पहले कुछ केमोथेरेपीज देते हैं, 3 या 4 साइकिल्स ऑफ केमोथेरेपी देते हैं। केमोथेरेपी देने के बाद ट्यूमर थोड़ा छोटा होता है, फिर हम ये रेडिकल सिस्टेक्टोमी वाला ऑपरेशन करते हैं। तो रेडिकल सिस्टेक्टोमी ये मसल इन्वेसिव ब्लडर कैंसर में यही गोल्ड स्टैंडर्ड है और यही एकमात्र ट्रीटमेंट है जिसके सहारे पेशेंट इस बीमारी से पूरी तरह से रिहा पा सकता है। आपसे और एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या मसल इन्वेसिव ब्लडर कैंसर में ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है या ब्लडर प्रिजर्व कर सकते हैं? जैसा मैंने बताया, जो कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो हमें बताते हैं जो नहीं मैं पेशाब की थैली निकालना नहीं चाहता। ज़्यादातर पेशेंट को ऐसा लगता है जो पेशाब की थैली निकालने पर अगर पेशाब पेट में या फिर कहीं से निकलता है तो फिर सोशली ऐसा रहना, तो बहुत से पेशेंट इस ऑपरेशन में जाना नहीं चाहते। अभी कुछ नए ब्लडर प्रिजर्विंग अप्रोच भी आए हैं जिस तरह हम ब्लडर को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, अर्थात हम पूरे ये रेडिकल सिस्टेक्टोमी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ये मेन ऑपरेशन में अगर कोई नहीं जाना चाहता उसके लिए लेकिन ट्यूमर को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। जैसा वो ट्यूमर थोड़ा लिमिटेड जगह में हो, जब हम TURBT करते हैं तब वो TURBT के माध्यम से वो ट्यूमर कंप्लीटली ब्लडर से क्लियर किया जा सके, ये कोई ग्लैंड में ना फैला हो। इस ब्लडर में ट्यूमर के कारण दो तरफ के किडनी में कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब दो तरह का किडनी यूरिन जम के फुल ना गया हो। अगर ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तब वी कैन थिंक ऑफ प्रिजर्विंग द ब्लडर। ब्लडर को हम बचा के भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके 2 उपाय हैं। इसकी मेन ट्रीटमेंट होती है केमो रेडिएशन से। 2 तरह की केमो रेडिएशन मोस्टली इस अवस्था में ली जाती है। एक होता है कॉन्टीन्यूअस लगातार केमोथेरेपी, उसके साथ रेडिएशन चलता है, और एक होता है जो पहले हम केमो रेडिएशन के कुछ डोज देते हैं, उसके बाद हम फिर फोटोसिस्टोस्कोपी और TURBT करके देखते हैं कोई बीमारी वहाँ पे बचा है या नहीं बचा है। अगर कोई बीमारी नहीं बचा है तो फिर हम बाकी केमोथेरेपी के ट्रीटमेंट इसको कंप्लीट करते हैं। सो अगर सर्जरी नहीं कोई करना चाहता है और ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो ब्लडर प्रिजर्विंग अप्रोच में भी जा सकता है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो है, जैसा मैंने कहा, ट्यूमर फैक्टर्स। वो ट्यूमर को ब्लडर में एक जगह पे होना पड़ेगा जहाँ पे TURBT करके हम पूरी तरह से ट्यूमर को निकाल पाए, ग्लैंड में नहीं फैलना होगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अगर ये केमो रेडिएशन मिलने के बाद हम चेकअप करते हैं और अगर ऐसा दिखता है जो नहीं बीमारी अभी भी ब्लडर में मौजूद है, अभी भी ब्लडर में उपस्थित है, तब लेकिन हमें फिर से रेडिकल सिस्टेक्टोमी में ही जाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले कहा, रेडिकल सिस्टेक्टोमी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। यही मेन ट्रीटमेंट है ब्लडर का जब वो मसल में इन्वेट कर जाता है। बाकी जो अप्रोचेस हैं ब्लडर प्रिजर्विंग वाला, ये मोस्टली हमारे वेस्टर्न कंट्री से आए हैं, अमेरिका, UK, वहाँ से ये ट्रीटमेंट आया है। पर उसके लिए द पेशेंट नीड टू हैव स्ट्रिक्ट फॉलोअप, पेशेंट नीड टू हैव द जो ट्यूमर है उसको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। अगर ये सब क्राइटेरिया ट्यूमर फॉलो करता है तभी हम ब्लडर प्रिजर्वेशन के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो हमें पूरा ही ब्लडर निकालना होगा। मसल इन्वेसिव में यही गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगले सवाल के लिए चलते हैं डॉक्टर नितेश के पास। सर, मसल इन्वेसिव ब्लडर कैंसर में केमोथेरेपी का क्या रोल होता है? देखिए, ब्लैडर कैंसर एक बस लोकल डिजीज ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं ब्लैडर कैंसर, लेकिन कैंसर जो है उसका माइक्रोस्कोपिक मेटास्टेसिस हमारे पूरे शरीर में रहता है। तो उसका बस लोकल ट्रीटमेंट, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी थेरेपी इज नॉट इनफ, वो काफ़ी नहीं है। तो इसके लिए हमें उसका पूरा सिस्टमिक, मतलब हमारे शरीर में जो कैंसर के सेल्स जहाँ कहीं भी हो, वो माइक्रोस्कोपिक मेट्स हर जगह होते हैं, माइक्रोमेट्स बोलते हैं उनको। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टमिक थेरेपी मतलब कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी ये हमें देना ज़रूरी है। तो उससे डिजीज
डिजीज का सिस्टमिक कंट्रोल होता है। सिस्टमिक कंट्रोल होने से जो बीमारी है, जब उनका ट्रीटमेंट हम खत्म करते हैं, जैसे लोकल ट्रीटमेंट जिससे सर्जरी या रेडिएशन खत्म करने के बाद बीमारी का डिस्टेंट रिकरेंस रेट बहुत ही कम हो जाता है और रिलैप्स फ्री सर्वाइवल रेट पेशेंट का बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है और इससे ओवरऑल पेशेंट का सर्वाइवल भी इम्प्रूव होता है और पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होता है। सो सिस्टमिक कीमोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सर्जरी से पहले हर पेशेंट जिसका स्टेज T2 और उससे ज़्यादा है उसमें हमें कीमोथेरेपी ऑफर करना है और अगर पहले ही सर्जरी हो गया है तो सारे पेशेंट जिनका स्टेज 2 और उससे ज़्यादा के बाद हमको कीमोथेरेपी ऑफर करना है या फिर उसके साथ इम्यूनोथेरेपी भी हमको देना है। सर, ब्लैडर कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का क्या रोल होता है? इम्यूनोथेरेपी अभी आजकल के ज़माने का एक रिवॉल्यूशनरी ट्रीटमेंट है और हमारे शरीर के बहुत सारे कैंसर जो होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्सिव होते हैं और वो कैंसर्स इम्यून थेरेपी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड देते हैं। उनमें से एक ब्लैडर कैंसर भी है। ब्लैडर कैंसर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करता है इम्यूनोथेरेपी से, इसीलिए अभी करंट गाइडलाइंस में इम्यूनोथेरेपी ब्लैडर कैंसर में अपफ्रंट, मतलब इवन ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद, इसको पेरी ऑपरेटिव बोलते हैं, मतलब ऑपरेशन के पहले इम्यूनोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी, फिर सर्जरी या ऑपरेशन, उसके बाद फिर इम्यूनोथेरेपी, ये कंटिन्यूस 1 साल तक। ये ट्रीटमेंट से सबसे अच्छा आउटकम अभी हम ब्लैडर कैंसर में देख रहे हैं, क्योंकि बस जो पहले हमने बताया जैसे कीमोथेरेपी सिर्फ लोकल कंट्रोल ही नहीं सिस्टमिक कंट्रोल को भी अचीव करता है, वैसे ही इम्यूनोथेरेपी सेम, नॉट जस्ट लोकल कंट्रोल, वो अगेन सिस्टमिक कंट्रोल और उसके साथ ये लॉन्ग टर्म सिस्टमिक कंट्रोल। कीमोथेरेपी देने से देखा गया है स्टडीज में बीमारी यूजुअली 2-3 साल के बाद कभी कभी वापस आने की संभावनाएं रहती, लेकिन इम्यूनोथेरेपी देने से ये रिकरेंस रेट या फिर डिजीज फ्री सर्वाइवल जिसको हम लोग बोलते हैं ये काफ़ी बढ़ जाता है। ये अराउंड मीडियन तब मतलब 50% लोगों में ये लगभग 6 साल या 7 साल। सो अगर हम सिर्फ कीमोथेरेपी दें तो ये लगभग 40-50 महीने मतलब 4 साल के लगभग आता है, बट हम अगर इम्यूनोथेरेपी देते हैं तो इसमें लगभग 2 साल और 3 साल और ऐड कर सकते हैं। सो इम्यूनोथेरेपी एड्स ऑन टू द कीमोथेरेपी एंड बस जो लोकलाइज डिजीज है उसमें नहीं, अगर डिजीज स्प्रेड कर गया स्टेज 4 में भी सेम जैसे कीमोथेरेपी है सेम इम्यूनोथेरेपी उसमें ऐड करके हम उसका बेनिफिट को बहुत ही गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो ब्लैडर कैंसर को बहुत इम्यून रिस्पॉन्सिव ट्यूमर बोलते हैं हम लोग और उसमें हम लोग कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो सर्जरी के पहले हो, सर्जरी के बाद हो या फिर स्टेज 4 डिजीज हो। अब चलते हैं रेडिएशन की तरफ। सर, मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर में रेडिएशन थेरेपी का क्या रोल होता है? इसका प्रोस एंड कॉन्स क्या है? Today we are talking about role of radiation in muscle invasive cancer, bladder cancer specifically. What exactly we are doing here? We are trying to preserve bladder. Unlike in surgery where we do radical cystectomy, in the case of T2, T3 and few selected T4A, radical cystectomy has to be followed by a neobladder. Neobladder is something which is made from helium and it has its own complications, recurrent UTI infection. Coming to the bladder preservation by radiation, it has shown similar outcome in a certain subset of patient. What are those subset of the patient? If it has a unifocal tumor size less than 3 centimeter, a tumor located in the nape of the bladder, patient has a good bladder function, performance status is good, patient is able to tolerate chemoradiation. In this set of group, we can preserve bladder. With bladder preservation, the patient has a superior quality of life. Along with that, we can achieve the similar overall survival OS as OS achieved in surgery. These are the main pros of bladder preservation through radiation. It's a trimodal treatment. We often go for maximal tube resection followed by radiation along with the concurrent chemo. By this we can preserve the bladder and get a superior quality of life and a similar outcome as per the surgery. What are the cons of this? The cons is that once you preserve a bladder through a radical radiation treatment, you have to have a close surveillance. Every 3 months you have to do cystoscopy for first 2 years. That is one of the biggest drawback, that patient has to be in a strict surveillance. Patient has to comply to this surveillance and roughly 20% of the patient have developed recurrence. The patient who develop recurrence has to go for radical cystectomy despite all the treatment. But looking backward, 80% of the patient will preserve bladder who will have superior quality of life. और अब एक सबसे असीम सवाल। सर, क्या ब्लैडर कैंसर क्योरेबल है?
नमस्ते, मैं डॉक्टर सप्तर्षि घोष हूँ। मैं होप एंड हिल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चोटियाकली मोड़ फुलबाड़ी में क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मे मंथ इज द ब्लैडर कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो ब्लैडर कैंसर मतलब पेशाब के थैली का कैंसर। पेशाब का थैली का कैंसर के बारे में हम लोग जब भी बोलते हैं तब उसका एक स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। 4 नंबर स्टेज जो होता है वो जो बाहर फैला हुआ है, जैसे कि लंग्स में या हड्डियों में या और कहीं पे ऐसा फैला हुआ है, दूर में कहीं पे फैला हुआ है, वो कैंसर स्टेज 4 कहलाता है। लेकिन स्टेज 1, 2 एंड 3 ब्लैडर कैंसर्स क्योरेबल होते हैं। स्टेज 1 में क्योर रेट अराउंड 75% है, स्टेज 2 में वो क्योर रेट अराउंड 60% है एंड स्टेज 3 में क्योर रेट्स आर अराउंड 30 to 40%। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है कि अभी ब्लैडर कैंसर्स का ट्रीटमेंट में काफ़ी सारा नया दिशा मिला है हम लोगों को। मेरे पहले डॉक्टर साहब लोग शायद बोले होंगे आपको कि कैसे कौन कौन सा ट्रीटमेंट से ब्लैडर कैंसर्स होते हैं। अभी सबसे इम्पॉर्टेंटली ब्लैडर कैंसर्स जब हम लोग देखते हैं स्टेज 1, 2 या 3 में, सबसे इम्पॉर्टेंटली देखते हैं कि मसल इन्वेसिव है या नहीं है। अगर मसल लेयर को वो इन्वेड कर दिया है, जो कि बायोप्सी रिपोर्ट में पता चलता है, तो मसल लेयर इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर्स में केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी एंड रेडिएशन, ये सब का ट्रीटमेंट में एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मसल इन्वेसिव नहीं है तो उसमें मेन ट्रीटमेंट सर्जरी ही होता है एंड सर्जरी के बाद मोस्टली कोई इंट्रावेसाइकल मतलब ब्लैडर के अंदर में कुछ इंजेक्शन देके हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि BCG इंजेक्शन हो सकता है, जो BCG इंजेक्शन जो हम लोग बच्चे को वैक्सीनेशन में यूज़ करते हैं, वही वैक्सीन जो है वो ब्लैडर कैंसर्स में भी इंट्रावेसाइकल ब्लैडर में पुश करके वो इंजेक्शन दिया जा सकता है। और उसके साथ साथ माइटोमाइसिन C बोल के और एक कीमोथेरेपी ड्रग है जो कि यूज़ किया जा सकता है। और जो मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर्स है, जो कि थोड़ा सा एडवांस डिजीज बोला जाता है, उसमें कैसे ट्रीटमेंट होता है? अभी सबसे पहले जो मसल इन्वेसिव डिजीज में होता है वो है कीमोथेरेपी किया जाता है। 3 to 4 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ फीचर्स के अनुसार में हम लोग डिसाइड करते हैं वेदर द पेशेंट विल गो फॉर सर्जरी और द पेशेंट चूजेस ब्लैडर प्रिजर्वेशन अप्रोच। सो सर्जरी मतलब ये होल ब्लैडर रिमूवल करके एक न्यू ब्लैडर बना के उसका ट्रीटमेंट करना, जो कि काफ़ी बड़ा सर्जरी है, हम लोग के यहाँ पे होता है ये। और दूसरा अप्रोच है कि लाइक कुछ पेशेंट्स नहीं चाहते हैं कि ब्लैडर को पूरा रिमूव किया जाए, तो वो ब्लैडर प्रिजर्वेशन अप्रोच में जाते हैं। रिजल्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट बराबर का है। जो ब्लैडर प्रिजर्वेशन अप्रोच है उसमें कुछ केसेस में रिजल्ट थोड़ा सा निराशाजनक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ही ये 2 अप्रोच में ही ट्रीटमेंट्स बहुत इक्वल है, तो रिजल्ट्स आर क्वाइट इक्वल। तो ब्लैडर प्रिजर्वेशन अप्रोच कैसे किया जाता है? तो ये न्यू एडजुवेंट केमोथेरेपी के बाद कॉन्करेंट केमो रेडिएशन दिया जाता है, जो कि रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ कुछ वीकली केमो चलता है एंड इसके साथ ये इलाज होता है। अब ये बोला जा सकता है कि लाइक अगर हम लोग सर्जरी की तरफ जाते हैं, जो कि एक्चुअली द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है एंड बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जो पेशेंट सर्जरी की तरफ जाते हैं वो सर्जरी कराते हैं एंड सर्जरी के बाद हम लोग को पता चलता है कि बायोप्सी रिपोर्ट में पैथोलॉजी क्या क्या फीचर्स है। अगर ये केमोथेरेपी के बाद भी अगर वहाँ पे जो रेसिडुअल ट्यूमर है वो अगर थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, जैसे T2 to T4 या तो फिर नोड अगर कुछ आसपास में कुछ ग्लैंड अगर पॉजिटिव है, तो ये सब कैंसर्स में हम लोग इम्यूनोथेरेपी भी 1 साल देते हैं। तो ये अभी सबसे रिसेंट अपडेट है एंड ये करके हम लोग ब्लैडर कैंसर्स में, मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर्स में 3 ईयर सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 70% हम लोग को अब मिल रहा है। तो डेफिनेटली ब्लैडर कैंसर्स आर क्योरेबल। सबसे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम को आप लोग पहचानिएगा कि पेनलेस हिमैचुरिया, जो ब्लीडिंग होता है ब्लैडर कैंसर में, पेशाब में ब्लीडिंग होता है, वो पेनलेस होता है मोस्टली एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ली साइन टू डिटेक्ट ब्लैडर कैंसर। तो डेफिनेटली ब्लैडर कैंसर्स आर क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। आप लोग सब सावधान रहिएगा एंड कोई भी कुछ अगर अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स दिखता है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइएगा। थैंक यू।